many companies like this Maruti and all that, they are being promoting this EVs also, right? And you might see that nowadays Ola vehicles hai, kuch bhi hai, even public transport hai, sara EVs ka ho chuka hai. But do you think that India is ready for EVs? So that is the question of today's GD. That do you think that India is ready for EVs? Okay. So you will have 3 minutes to think about it. Very easy topic. It's your perception that you feel, yes, maybe you guys have a vehicle of EV and you might have it out and you might be thinking, yes, India is ready. And some people might be doing it out. India is not ready. ये topic कौन कर चुका है? मैं एक बारी करवा चुकी है topic. किसी ने ये topic किया हो मेरे साथ पहले? No one has practiced it out before? No, no. Okay, fine. Right. 3 minutes starts now and it's 3:41. By 3:44, we are going to start. Introduction, who wants to do it out? I will do it. Okay, Jayesh will go for introduction today. Who has never done the conclusion can come ahead. I think Dishant, conclusion नहीं किया कभी? मैंने किया एक बार. किया, you want to go for conclusion or Parth? Amongst Part did it yesterday. Parth did yesterday. Okay, Dishant, go ahead with the conclusion then. Fine? Chalo, time starts now. Okay, so I think the time is up. And Jayesh, you can go ahead with the introduction. So, good morning, everyone. I am Jayesh Damakle, and the topic given to us today for discussion is India ready for EVs? I believe it's a very interesting topic and is of current relevance. Now, if we see, there are various advantages of EVs, like the major being EVs cause less pollution, and there are other factors like less cost of running. It is more environmental friendly, and in technical view, it has also less moving parts. And but if we see currently in India, the development regarding the EVs, like the charging station and the mindset of population is the major hurdle to for EVs to become a success in India. So I believe that yes, the India is ready for the change. India can India is definitely ready for EV. And with this, I open the house for discussion. Thank you. Yes, yes, I completely agree with your point that population is the major cause. But I would like to contradict that point that EV is not going to create pollution because in the direct consequence that it is less polluted, but in indirect consequences that it needs electricity to run. And India as a country, it completely majorly depends on the coal. The degradation of the coal required to produce electricity. Sorry, Praveen, I disagree with you here because if we see the recent 6-year data, the electricity generation to hydropower plant has increased as compared to the thermal power plant. So the effect of pollution to generating electricity through coal has also decreased. You may continue. Yeah, okay, Parth, you are absolutely right. But in future scenario, we cannot move on the totally on the renewable energy uh, by reducing the totally coal energy because uh, we are producing energy via thermal power. So thermal power, I think next 50 to 60 years, we are heavily dependent on the coal energy. Rightly said, Rohit. Also, the renewable energy is also a variable form of energy, so we cannot rely on that totally. So for few decades, India is dependent on thermal energy mainly.
Yes, yes. And there is also a drawback of electrical vehicle because if the charging time of the batteries is much more as compared to if we go to any Indian oil or any oil company to fill up the petrol or any CNG, that is uh, Sorry, Rohit, I disagree that with you here require very because short the of reason is that time. if you see nowadays for the electric vehicles, what the now electric vehicle scooter companies are doing is that you can just go to the charging station now and they will just remove your battery and put another recharged battery with your scooter. So now you don't have to waste your time at the charging station. So that the problem of charging time has solved by this method also. Yes, Yeah, yeah, I am I agree with you, but agree, but uh, there removing are a few removing charging stations available in our country. And if we talk about the rural area, in rural area, there is a lack of charging stations, and also the rural area peoples are not aware about the electric vehicle. So I think India is not ready for the launch of electric vehicle. Sorry, Gopal. I differ from you here. The reason is there because is that if you see also nowadays in even in the small town and small villages, the electric auto rickshaw is quite common if you see as compared to the auto that is based on IC engine. So yeah, you are the right. reason for that Electric is that because IC engine auto is quite costly as compared to the electric vehicle auto. So you can even see in the smaller town also the electric vehicle rickshaw is quite common. Yeah, Rightly absolutely. said, But Parth, but I believe that the efficiency major of hurdle electric vehicle in is very bringing less. If EV you to the see, mainstream is the mindset of the people. Like if we ask our father or if we ask them, then they will certainly say that do not go with EV. You should always go with some IC engine car because they believe that it is not reliable for a long term. yeah, absolutely Yes, right. Because the few days efficiency, ago, we can I saw also in the see news that. that electric vehicle is getting मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा था जिसमें मैंने देखा था कि उसमें अपने आप आग लग गई थी। तो ये भी लोगों के माइंडसेट में आजकल बैठ गया है कि Sorry, इसकी Gopal, I यूज differ करने with से you here. The reason is that because there is also car in early when the IC engine cars were developing at that time also the car used to burn at that time in the early 1930s when the car were developing. At that time also the burning of the Yeah, engine and exploding was quite common. Even in Delhi also you can see that a few years ago it was very common that you can heard in the news that the CNG based car has exploded. yeah, absolutely right, Path. But the efficiency of I think the efficiency and the term of speed also. EV is not efficiently work as Indian Oil because in today's scenario, company because EV has a very old invention and they EV does not grow as they predicted company because 2020 2030 I think 2030 we predicted that we wholly depend on the electric vehicle but in current scenario it does not seems like that because companies do not finding the more efficient way to run the electric vehicle on the road because their efficiency their cost they are replacing battery cost that is not as much as efficient as we expect from the Indian oil or oil company. I do not agree with you, Rohit, because the efficiency is not a question. Yeah, Because if you see major companies like Tata's, Mahindra, and yes, I Kia, agree with you. they are going to towards EV, and they are also guaranteeing some 10 years life of the batteries. So battery is not a problem, and also I believe that definitely the electric vehicle is more efficient than IC engine vehicle as it got less moving parts. So it is more efficient than IC engine vehicle. I but think Yeah, I I think that Jayesh, I in think our one country the problem is also electricity is the major problem. Electricity theft and electricity cut is the main major problem for electric vehicle. If the our battery is not long lasting and we are on the way and there is no electricity available, then how we charge our battery? Sorry, Gopal, I differ to agree with you here. The recent just few minutes ago, you told me that sorry, Jess was that our parents were not the supporters of EV, but the reason at that time was that the electricity cutting was very common. But nowadays, if you see the electricity cutting has reduced a lot. If in future if we target that the electricity cutting is reduced to very low portion,
If that is the No, no, no. I am not agree with you. I belong to the rural area. I see that there are only 4 to 5 hours are electricity available in our villages. Yes, Gopal, I would like Yes, to add one more new point that after the expiry of the lithium battery, the deposition is the major concern which can create a soil pollution as well. And if it is disposed in the sea areas, then it will create definitely water pollution also. And the other concern is that lithium battery, the source of the battery is lithium. So getting a lithium is also a concern in the future, can be also a concern in the future also. Sorry, Praveen, I disagree with you here. The reason is that the way we are getting oil from the Arab countries, we can also get the lithium from the Tibet and from the China and from the Afghanistan also. We can It is also, also, like, yes, sir. Yes, Parth, I would like to disagree. You'll find that it is also, as we are getting lithium, but we are mining it from Bhutan also and China also. And that will also be an end of any energy resource. That is also become a renewable source. So if you, a natural resource, sorry, and if you will talk about many countries using wind energy as a renewable energy for their EV vehicles, but in India we can't generate electricity with the wind because that velocity we can't get from the wind. Okay, and I also add to one more point because I think BHEL is preparing for lithium and battery for EV, but the infrastructure in India currently at present scenario, if we see as a whole India, mainly to the rural area, India is not completely ready for the electric vehicle in this current scenario because first we have to set up the infrastructure technology in village and everywhere to move the electric vehicle because in today everybody want to go at every corner of the whole India, and at this time India is not ready at that efficient way to move one place to another place in rural area. So I think if it is not suitable time or India is not mostly ready in this current scenario for electric vehicle. I would also like to add one more point that currently EVs are also not economic friendly because mainly EVs, if we see Nexon, it comes around at 20 lakhs. And if we also see a popular Ola scooter, it also comes nearly about 90,000 to 1 lakh rupees. So I believe that it is not mainly affordable for the citizens, for the middle class people, for the major sorry, population Jess, of I India. disagree with you because there was a time in the year 2002, the pen drive of 512 MB used to cost 2,000 rupees at the 2002. But now the 8 GB pen drive just cost 200 rupees. So even if we implement EV, the R&D development definitely will lead to reduction in its cost after But some Rightly Parth, time. said, But bro, But I it believe is a at that current in current scenario, the situation, the infrastructure and the lithium, EVs are not lithium ready. is not available in our country, na. That's why it will be not economical at that time. yes, Gopal, you are correct. Okay, guys, so the time is up and it was a really great discussion. I think that first time it was that the participation was at that huge extent, right? So before that, yeah, before the conclusion, it was to be done by Dishant. Yes, ma'am. Go ahead. Good afternoon, everyone. I am conclude this topic on the behalf of everyone. So I can conclude the measure our government had decided कि 2030 तक इंडिया फुली रिलाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल तक। पर अभी मेजर प्रॉब्लम चल रही है कि लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चर, फर्स्ट केस ये है कि लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चर उस हिसाब से हो नहीं पा रहा जिस हिसाब से हम कि उस पर फुली रिलाई हो जाए। और सेकंड की इलेक्ट्रिक कट बहुत हो रही है, सेकंड थिंग। एंड एक मतलब मेन इशू, अच्छा इशू ये है कि इशू नहीं कह सकते, एक अच्छी बात ये है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिप्लेस करना अभी भी मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि मैक्सिमम पीपल रिलाई ऑन फोसिल फ्यूल स्कूटीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी हमारा टॉपिक है कि इज इंडिया रिलाई ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल नाउ, बट
अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बट हम इनिशिएट स्टार्ट कर सकते हैं कि हम फुली रिलाय हो जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। दैट्स इट। Okay, so genuinely it was a discussion for the first time in number of days. We actually everyone interacted, right? So I think the participation level was more, and basis on the content also it was good. But before I come to each one of you, just I'll ask you everyone, how many of you have EVs at your home? किस किस घर में EV है? No, no. I haven't. किसी के घर में EV नहीं है? I am telling you this Yes. is way we participate. पार्थ के घर में पक्का होगा, जितना पार्थ लड़ा है कि मेरे EVs No, ma'am, I don't have. We don't And have he was it. fighting for EVs like anything, that everyone used to speak something negative about EVs, and he was the one who used to jump it out. Anyone asked Parth, तुम्हारे घर में EV है भी जो इतना जंप कर रहे हो? And that was the best contradiction, you know, कि जब आप काउंटर Yes, करते हो ना ma'am. किसी को, मैंने सबको बोला था, मैंने प्रवीण को भी बोला था, और मैंने everyone I say it out, क्वेश्चन पूछ के काउंटर करा करो, आपकी पार्टिसिपेशन भी होती है, आप डिफरेंट भी बनते हो सबसे। किसी ने पूछा ये Yes, चीज? ma'am. नहीं पूछी ना। ये चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कट लगते हैं, थेफ्ट होता है, जो होती है चोरियां होती है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ये आप किसी एक स्टेट पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि है बिजली पूरा टाइम या नहीं है, ठीक है? तो वो कुछ चीजें है ना जो हम, ये कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीजें हैं, क्योंकि कुछ कुछ लिंक्ड पॉलिटिकल डोमेन से आ जाती है। सरकार से अगर आप देख लो, अगर इलेक्शन से पहले इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत कम लग रहे थे, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कट क्या होते हैं, इंक्रीज अप हो जाते हैं। ये चीज एक जेन्युइन रियलिटी है ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो, बट दैट इज अ पेस। हम नहीं कह सकते, कहीं स्टेट्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं लगता है, बहुत कम लगता है, बट देयर आर मेनी स्टेट्स, मेनी एरियाज जहां पे हर दिन गर्मियों में 2-2, 3-3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कट लगता है। दैट इज ट्रुथ, ठीक है? सो व्हाट आई मीन टू से इट आउट इज ऑलवेज जंप फॉर, जब आप किसी को काउंटर करो, जैसे पार्थ काउंटर कर रहा था आप लोग को, आप सभी 6 जाने एक जगह पे थे, यू वर 5 इन वन नंबर एंड पार्थ एक साइड पे था, आप लोग मिलके उसको बहुत अच्छे से काउंटर कर सकते थे, आपने नहीं किया। वो लीव नहीं करनी स्पेस। और पार्ट एक और चीज, जब आप काउंटर करते हो ना, whenever you are into the opinion of not relating with them, try to be very polite and very soft in the words. ये नहीं लगना चाहिए कि लड़ रहे हो, लड़ना नहीं लगना चाहिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट कर रहे हो, आपका बहुत बार बाद में क्या लगने लग पड़ा था कि जैसे कोई बोला और झपट्टा मार दिया। पाउंसिंग नहीं लगना चाहिए किसी के ऊपर। इट शुड बी वेरी नाइसली दैट ओ आई एम सॉरी बट आई कुड नॉट रिलेट विद योर टॉपिक, आई थिंक आई हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट, ऐसे बोल लो ताकि आपके पॉइंट की वैल्यू, यू वर गुड इनटू योर डिस्कशन, पर इतना हाइपर एक्टिव भी नहीं होना, ठीक है? वो चीज नेगेटिव थी। Okay. नाउ कमिंग टू ईच वन ऑफ यू, मैं सबके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है? जयेश का था। अच्छा, आज की सबसे अच्छी डिस्कशन का किसका था? क्या लगता है आज किसने अच्छा परफॉर्म किया है? पार्थ। पार्थ ने। पार्थ डिस्कशन वाज गुड। जयेश का हमेशा आता था, 2 दिन से जयेश का चल रहा था, पर आज जयेश का इतना अच्छा नहीं था। उससे और अच्छे नेम्स हैं, आई विल टेल यू इन द ड्यूरिंग द डिस्कशन नाउ। जब जयेश ने स्टार्ट किया, आई थिंक जयेश यू आर देयर। Yes, ma'am. आप देखो जयेश, यू वेरी गुड इन बिटवीन पार्टिसिपेशन, आपका इंट्रो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है? जब आप बात कर रहे थे, आपका कॉन्फिडेंटली कम था, कॉन्फिडेंस कम था, और जो आप टॉपिक दे रहे हो कि यस इंडिया इज रेडी अकॉर्डिंग टू मी, या फिर लेस पॉल्यूशन, लेस कॉस्ट ऑफ रनिंग, आपने पहले बताना होता है टॉपिक का मीनिंग। ईवीज क्या होते हैं, सीएनजी फ्यूल्स, जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, आपको पहले मीनिंग देना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू अस वी ऑल नो दैट इंडिया इज वेयर द पॉल्यूशन लेवल हैज बिकम अनकंट्रोलेबल, और यू कैन कॉल इट आउट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली ऑल्सो। हमने इवन नंबर का, इवन ऑड का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। देयर इज अ डायर नीड ऑफ रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन एंड गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ईवीज, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि वी आर स्टिल इन कंफ्यूज कि इंडिया रेडी है या नहीं है। क्योंकि कई बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है ईवीज की लाइफ बहुत कम है इंडिया में, क्योंकि रोड्स भी बहुत सुंदर है हमारे इंडिया की। वी ऑल नो कि इंडिया की रोड्स कितनी ज्यादा सुंदर बनी है, और वो किस चीज को ज्यादा सपोर्ट करती है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में ईवीज प्रोमिनेंट है, ऑटोमेटिक व्हीकल्स बहुत अच्छे से चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की रोड्स बहुत क्लीन और बहुत स्मूथ होती है। तो एक ये रियलिटीज है, जो रियलिटी चेक को हमें देखना है। जब कंक्लूजन हम प्रेजेंट करते हैं दिशांत, तो कंक्लूजन इज ऑलवेज न्यूट्रल कंक्लूजन। इट इज, आपको कैसा कंक्लूजन करना होता है कि चाहे अभी हमारे में कुछ है, कुछ इंडिया में कमियां हैं कि इंडिया नहीं रेडी लगता है, पर देयर इज नॉट अ लॉन्ग टाइम, गवर्नमेंट प्लान करके हम सारे इकट्ठे होके इंडिया एक दिन प्रॉपर्ली रेडी हो सकती है। मतलब एक पॉजिटिव एंडिंग ही करना होता है, और न्यूट्रल एंडिंग होता है, डिप्लोमेटिक बोलते हैं ना, जैसे डिप्लोमेटिक एंडिंग करना होता है, ठीक है?
तो वो आपको करना है, आपको ये बोलना चाहिए था that everyone popped up concepts. Many of us thought that India is not ready, but Parth also presented that there are certain pointers from which he made us believe that India is ready. So we should not make to one conclusion, and we should always have a positive ending that yes, with firm belief and government policies, we can make India ready for EVs. That's it. ठीक है, तो आपने ऐसे एंड करना था। प्रवीण का पॉइंट था, प्रवीण का बहुत अच्छा पॉइंट था। एंड द वे यू स्टार्टेड प्रवीण, योर द लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। मतलब आपके, अगर मैं 2-3 बच्चे बोलूंगी एट द एंड कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं जो अबव एवरेज चल रहे हैं इस टाइम पे, तो प्रवीण इज वन अमंग्स देम कि आपका कंटेंट डिलीवरी इज गुड, आपके पॉइंटर्स अच्छे हैं। जैसे आपने बोला लेस पॉल्यूटेड इलेक्ट्रिसिटी मेजरली डिपेंड्स ऑन कोल का आपने प्रॉब्लम किया, पर पार्थ ने बहुत अच्छा काउंटर भी कर दिया आपको कि 6 ईयर से हम देख रहे हैं हाइड्रो पावर एंड ऑल दैट, वो काउंटर बहुत अच्छा हो गया। तो दोनों के पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, काउंटर लेवल भी अच्छा था। देन रोहित केम इनटू द सिनेरियो, इट इज लाइक फ्यूचर सिनेरियो पे हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, गुड पॉइंट। बट रोहित लिंकेज करा करो दैट कॉन्ट्रेरी टू पार्थ का, जैसे आपने बोला पार्थ आई डू नॉट एग्री विद यू, तो उसको थोड़ा और कॉन्फिडेंटली थोड़ा उसके वोकल्स को प्रैक्टिस करो, आपका पॉइंट अच्छा था। ठीक है, उसके बाद जयेश का पॉइंट आ गया कि इंडिया डिपेंड ऑन थर्मल एनर्जी, तो वही पॉइंट शुरू हो गए। अब रोहित ने पॉइंट स्टार्ट किया चार्जिंग टाइम का, जो एक ट्रुथ है। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन उस पे आ गया, पार्थ ने पॉइंट दिया गोइंग टू चार्जिंग स्टेशन एंड अदर चार्जिंग बैटरी, काउंटर अच्छा था। तो रोहित का पॉइंट फेल हो जाता है। जब आपको मार्क्स मिलते हैं ना, इट इज अबाउट, जैसे रोहित ने एक अच्छा पॉइंट दिया पर पार्थ के फिर डबल स्टार हो जाते हैं क्योंकि पार्थ ने कॉन्ट्राडिक्शन काउंटर बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, तो आपका ये होता है, आपको अपने पॉइंट को थोड़ा बचाना भी होता है, आपको कॉन्ट्रारी में थोड़ा अच्छे से दिखाना होता है। उसके बाद गोपाल ने बोला, गोपाल का पॉइंट बहुत अच्छा था कि भाई जितना मर्जी ऐसे बैटरीज रिप्लेस हो जाए, चार्जिंग स्टेशन तो कम है ना इंडिया में अभी, हर जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन। अभी आपने देखा है इंडिया में हमारे बहुत व्हीकल सीएनजी की तरफ मूव कर रहे हैं, पर हर पेट्रोल पंप सीएनजी में भी नहीं है, हर पेट्रोल पंप पे आपको सीएनजी गैस भरवाने वाला भी नहीं मिलता, तो आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाला तो कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज, गोपाल पार्टिसिपेशन आगे से कम थी बट आपका पॉइंट अच्छा था, दैट वाज जेन्युइन। देन पार्थ की तो पार्टिसिपेशन ज्यादा ही होगी थी आज, मोर देन दैट वाज रिक्वायर्ड, वो पार्टिसिपेशन चली गई थी। लेट अदर्स आल्सो स्पीक अप पार्थ। मैंने हमेशा बोला कि आपकी देखिए पार्टिसिपेशन देखो, जयेश ने बोला, रोहित ने बोला पार्थ, गोपाल ने बोला देन पार्थ, देन जयेश ने बोला देन पार्थ, ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप हर एक को काउंटर करोगे, ऐसा होगा कि आप किसी से एग्री नहीं करते हो। जब आपकी जीडी होती है, बेसिक पर्पस ऑफ हैविंग अ जीडी इज, आपको बाद में फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप टीम वर्क कितना कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, ये रीजंस होते हैं। आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, आपके कैसे जार्गन्स हैं। ये नहीं होता है कि कौन कितना ज्यादा चुप बोलने नहीं देगा किसी को, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। और जो ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं वो भी देखना, फीडबैक्स लेना, उनको भी निकाल दिया जाता है, जो कम बोलते हैं उनको भी निकाला जाता है, बैलेंस चल। ठीक है, then it is all about, I think, nowadays small and towns. अब apart from point, it was not very good। जैसे आप बोलते हो कि छोटी छोटी सिटीज हैं, छोटी सिटीज में छोड़ो, हम बहुत अच्छी डेवलप सिटीज में बैठे हैं, हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ईवीज को। छोटी सिटीज में ई रिक्शा नहीं है, बहुत सिटीज हैं, बहुत टाउन्स हैं, बहुत विलेजेस हैं जहाँ पे ई रिक्शा तो छोड़ो, वहां पे नॉर्मल ऑटोज भी नहीं है, वहां पे नॉर्मल रिक्शास चलती हैं। ठीक है, तो वो आपको काउंटर किसी ने नहीं किया, बट वो पॉइंट वेग है, वो पॉइंट सही नहीं है। ठीक है प्रोमिनेंट बट बहुत कम है। देन इट वाज, आई थिंक जयेश का पॉइंट था माइंडसेट ऑफ पीपल, वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज वहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए था। लेट्स कम टू द माइंडसेट ऑफ पीपल। हम बैठे हैं जितने भी लोग, हमारे घरों में कितनों के घर में ईवीज है, वी डोंट हैव, नन ऑफ अस हैव एन ईवी, और शायद हम लेंगे भी नहीं। अगर आपको ऑप्शन मिलता है, आप फ्यूल व्हीकल की तरफ भागोगे, ईवी नहीं भागोगे, क्योंकि आप बोलते हो यार लाइफ कम है। एवरेज एवरीवन सीज ना, माइलेज देखते हो तुम लोग जब कोई व्हीकल को लेते हो, कितना एवरेज हमें चलना है, वो कौन कौन सा व्हीकल ज्यादा है, फ्यूल व्हीकल की ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी एवरेज लाइफ किस व्हीकल की ज्यादा है। हमारे घर में एक्टिवास पड़ी होंगी, सबके घर में होंगी, कौन कौन सी ईयर से, कईयों के पास 2010-11 की भी पड़ी होंगी, अप्रोक्सीमेटली 2015 से पहले की, सबके घरों में होंगी, राइट। ईवीज इतनी लाइफ काटेंगी, हमें नहीं पता। ठीक है, एक नया कंसेप्ट है। आपके फादर, जैसे जयेश ने पॉइंट दिया कि फादर नहीं एग्री करते, मैं बोल रही हूँ हम लोगों में से कितने लोग एग्री करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो व्यू पॉइंट दैट यू नीड टू एग्री। देन एस गोपाल का आ गया इलेक्ट्रिक इजिली ये वाला, हाँ, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल भी नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बहुत होती है, चोरी भी बहुत होती है। आपने एक कंसेप्ट सीखा होगा, विलेजेस में तो होती है, बिजली चोरी होती है। ठीक है, तो कल को ये पता चले कि साथ वाले घर से हम बिजली चार्ज करके ईवी अपना चार्ज कर रहे हैं, उसका बिल ज्यादा आ रहा है, वो भी कोई फायदा नहीं है। देन पार्ट का था
कि 19 हाँ इलेक्ट्रिक फायर एक्सटिंक्शन वाला वो पॉइंट बहुत अच्छा था कि पार्थ ने जैसे पॉइंट दिया कि एक्सप्लोडिंग वाला वो काउंटर अच्छा था पार्थ आपका गोपाल का। ठीक है, रोहित का एफिशिएंसी वाला वही एफिशिएंसी टर्म ऑफ स्पीड ये पॉइंट दे दिया था रोहित ने, दैट इज अ गुड पॉइंट कि माइलेज सारा उसमें आ जाता है। ठीक है, कि एवरेज ऑब्वियसली सीएनजी फ्यूल की ज्यादा है। देन जयेश का चैनल लेस मूविंग पार्ट्स हैं। ठीक है, गोपाल का इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वाला पॉइंट अच्छा था, दैट वाज गुड पॉइंट। पार्थ का आई थिंक नॉट सपोर्टिव एक्टिविटी रिड्यूस। प्रवीण आपने पॉइंट दिया था लिथियम आयन बैटरी का। अगर आप पार्ट बोलते हो ना कि लिथियम आयन भी तो हम बैटरीज हम बाहर से ले सकते हैं, तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट में तो हमारा नुकसान हो रहा है ना इकोनॉमी का, हमने इकोनॉमी का नुकसान थोड़ी होने देना है। अब लेकिन इसका काउंटर ये था लिथियम आयन एक्सट्रैक्ट हमारे आई डोंट रिमेंबर कि कश्मीर के किसी एरिया से बहुत ज्यादा मिले हैं। जम्मू तो कश्मीर हाँ, जम्मू तो जो हेल्पफुल हो सकता है वो आपको बोलना चाहिए था कि हमें एक्सट्रैक्ट्स मिले हैं, तो शायद आपको मैंने बोला दोनों साइड्स पे बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि ये चीज जो है ये फ्यूचर में हमारी हेल्पफुल हो सकती है कि जैसे हमें एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं तो इन फ्यूचर हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है लिथियम आयन बैटरीज को, हम यहीं पे अपना कुछ व्हीकल्स को भी असेंबल और सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आपने आईफोन्स का कंसेप्ट सुना था, इस बार असेंबलिंग कहाँ पे हुई थी, इंडिया में हुई थी। सूनर एंड लेटर हमारे पार्ट्स भी हम क्या करें कि शायद यहाँ पे ही हमारा वो मिल जाए। अगर ये चीजें हमारी इंडिया को मिलना शुरू हो जाए तो हमारा इकोनॉमी वाइज भी कितना बून हो सकता है। अभी नहीं है बट इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट इट आउट फॉर दैट कि यहाँ पे इकोनॉमी बून भी हो सकता है, कि ये पॉइंट्स भी मिस नहीं करने हैं क्योंकि बहुत डिफरेंट पॉइंट्स है जो शायद कोई और नहीं देगा। ठीक है, जैसे आईफोन का कंपेयर करवा दो। प्रोजेक्ट्स बताओ किस किसने किया, मैंने बोला आपको ओला स्कूटर्स का मेंशन किया था आई थिंक, किसने मेंशन किया था, ये जयेश ने मेंशन किया था। समवट नॉट अफोर्डेबल, बट आपको पता है जो ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है कहीं पे भी चले जाओ उसकी पार्किंग फीस नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएट देने की कोशिश कर रही है कि पार्किंग फीस नहीं लगेगी वहां पे भी आपकी ओला व्हीकल्स की। प्लस दे आर ट्राइंग टू प्रमोट, अगर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो व्हीकल्स चलते हैं वो कहाँ चलती है, ईवी बसेस चलती हैं, ताकि हम कम लोगों को क्या है ज्यादा लोगों को एक व्हीकल में कमोडेट कर पाए। तो दैट इज गवर्नमेंट हमारी किसको प्रमोट कर रही है, हमारी जो भी कंपनीज है, नहीं हमारी कंपनीज भी किसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है ईवीज के लिए ले रही है। तो हमारी कंपनीज तक जो है मारुति एंड ऑल दैट वो भी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है कि ईवीज ही आए मार्केट में। तो इनिशिएटिव्स बहुत ले रहे हैं, ये एंडिंग के टाइम हम बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव सभी ले रहे हैं एंड सूनर हम देखेंगे कि बहुत लोग अडेप्ट भी कर रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम फॉर एवरी न्यू थिंग टू बी अडेप्टेड। टाइम लगता है पर शायद एक दिन होगा जब हम बात करेंगे हाँ फ्यूल व्हीकल होते थे हमारे घर में, आज हमारे घर में क्या है, ईवीज है। ठीक है, उसी के साथ आ गया आई थिंक जैसे आप पार्थ ने बोल दिया ऑयल भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, गलत है वो। आगे ऑयल के पैसे कितने ज्यादा है, फ्यूल के पैसे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, तो उसमें फिर और कितना करना है हमें। रोहित का आ जाता है लिथियम आयन का। ठीक है, जयेश का ओला स्कूटर वाला था। ठीक है, पार्थ ने आई थिंक इट इज गिवन R&D वाला जो डेवलपमेंट होगा, वो R&D डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल जब आप ये एग्जांपल्स देते हैं आईफोन का, ये लिथियम आयन एक्सट्रैक्ट जो हमारे इंडिया में अवेलेबिलिटी है और उससे हमारा पूरा है, तो फायदा ये पॉइंट बोलने का, अदरवाइज नॉट। ठीक है, देन इज गोपाल लिथियम नॉट अवेलेबल, लिथियम अवेलेबल है भाई, नॉट अवेलेबल वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, बट वही है अभी बहुत अवेयरनेस है। एंड देन दिशांत, क्लोज दिस टॉपिक नहीं होता दिशांत, इट इज लाइक आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉपिक। ठीक है, and then it is like every person gave their different perspectives, many of the people our team they disagree that no India is not yet ready, but yes Parth gave us very wonderful points कि बताओ ना आप किस डायरेक्शन में मूव करें, और आप लोग भी दोनों डायरेक्शंस पे चला। और पार्थ आपको बहुत ये नहीं होना, फर्म नहीं होना। अगर किसी ने काउंटर कर दिया होता कि पार्थ खुद के घर में ईवीज हैं, यूज किए है कभी, तो क्या बोलते, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, झूठ बोल देते तो नहीं बोलते ना झूठ है। बोला। हाँ तो वो नहीं, बोलते तब लिखा था। जी जी नहीं, दैट इज जी जी। जब आप जल्दी जल्दी में बोलते हो ना, ऐसे डिस्कशन चल रही होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अभी तो बड़ा स्मूथ चल रहा है आपका, एटलीस्ट यू पार्टिसिपेटेड इट आउट, तो सच बोला जाता है। ये तो होता है दिमाग में अगर चल रहा हो, वो बोले हाँ नहीं है मेरे पास ईवीज, कौन सी कंपनी का, कौन सा लिया था ईवीज, इतना नहीं तुम ट्रैप हो सकते जीडी के टाइम पे। वो ट्रैप होने लग गए ना तो तुम लोग तो और ब्लफ करोगे। ठीक है, और वो पता चल जाता है, जैसे उसकी स्माइल आगे वैसे पता चल गया, वहां पे कंट्रोल नहीं होती है तुम्हारी। ठीक है, तो दैट इज एवरी टाइम ट्राई टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड इवन इफ इट इज एज, तो आप बाकियों से कंपेयर करते ना कि आप लोग बाकियों के घरों में है नहीं है, तो दैट इज द ट्रूथ ऑफ रियलिटी की अवेयरनेस नहीं है भाई अभी तक। मार्केट में अवेयरनेस लानी पड़ेगी पहले, तो हम लोग सभी लोगों को एग्री होना पड़ेगा कि हम तो ट्राई करें ईवीज को, फिर जाके हम प्रमोट करें। ठीक है, सो दिस वाज अ टॉपिक, आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नेगेटिव्स थे प्रवीण, थोड़ा और पार्टिसिपेशन जो मैंने आपको कंटेंट बताया, कंटेंट वाइज इट वाज गुड। बेस्ट वाज पार्थ का अच्छा था, प्रवीण का अच्छा था, गोपाल का पार्ट अच्छा, रोहित के पॉइंट्स भी अच्छे थे।
जयेश आज कल से कम परफॉर्मेंस अच्छी थी क्योंकि आपका नेक्स्ट लास्ट 2 डे से बहुत अच्छा चल रहा था। दिशांत थोड़ा और प्रैक्टिस करो, इन बिटवीन पार्टिसिपेशन होती नहीं आपकी, बहुत कम होती है, ठीक है, Yes, एंटर ma'am. करने की, और पार्ट थोड़ा कम कूदना है आगे से, ठीक है, बाकियों को भी चांस देना है, सो Sir- गिव अदर्स आल्सो चांस टू हेलो पार्टिसिपेट। मैम, मैम अगर हम लोग बोल रहे हो तो मिडिल में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं? कर सकता है पर्सन, बट वो वॉइड हो जाता है, मतलब वो इतना अच्छा इंप्रेशन है, जैसे प्रवीण पार्थ ने पहली बार किया था, आई थिंक आपको किया था काउंटर, यस मैम। बट वो जैसे उन्होंने काउंटर किया, आप चुप हो गए और पॉइंट उसका डिलीवर हो गया। अगर पार्थ दूसरी तीसरी बार भी ऐसा करता तो उसके नेगेटिव हो जाता। तो आप वेट करो ओपिनियन को खत्म होने की, देन यू काउंटर इट आउट, वेट फॉर इट। लेकिन अगर आपको कोई बोलने नहीं दे रहा तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है, बट द बेस्ट इज पेशेंसली लिसन इट आउट एंड देन स्पीक अप। क्लियर? अभी क्लियर है चीजें? किसी को ये प्रॉब्लम टॉपिक में? ईवीज का टॉपिक क्लोज है? मैम ये पूछना था मुझे मैम, जब कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में काउंटर नहीं करना है मैम? नहीं, बीच में नहीं करते हैं काउंटर, वो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है आपका, कि आप वही बोलते हैं ना हाइपर एक्टिव क्या होता है, यही Okay. चीजें होती है, और ओवर पार्टिसिपेशन भी होती है, ठीक है। Okay. अब आपके 2 चीजें मैं आपको कल बोल रही हूँ, आई एम गिविंग यू 3 चॉइसेस। कल या तो हेल्थ केयर पर डिस्कशन होगी, जो हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर और हम फ्यूचर हेल्थ केयर। आजकल एग्जाम पेपर लीकेज बहुत हो रहा है, आप लोगों ने देखा है, ये न्यूज अभी चल रही है, राइट, नीट का हुआ, बहुत पेपर कैंसिल हो रहे हैं, इस पे जीडी होगा एक, ठीक है। और थर्ड टॉपिक एआई का, तो इन तीनों में से कोई जीडी हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट 2-3 days, राइट। तो अपने टॉपिक्स अपने आप पेपर लीकेजेस पे आ गया, हेल्थ केयर पे आ गया आपका, और एआई पे आ गया, तो ये प्रिपेयर करके आना अच्छे से। तीनों टॉपिक्स मैंने बता दिए, इनमें से 1 टॉपिक विल बी टेकन, क्योंकि पेपर लीकेज एक बहुत वो है जो प्रोमिनेंटली न्यूज में चल रहा है आजकल टॉपिक, ठीक है। और फीमेल विमेन वाला हम टॉपिक बाद में इसी वीक करेंगे, हम 3-4 दिन मैंने आपको बता दिए क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं आपके रन में, ओके। तो एवरी डे ट्राई टू अटेंड इट, और लेट मत हुआ करो, ऑन स्पॉट टाइम पे ज्वाइन किया करा करो, ठीक है, ओके। चलो, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। मैम एक पॉइंट, मतलब हम लोग एक कोई अगर जीडी के बीच में हम पॉजिटिव पॉइंट भी रख सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हाँ रख हाँ सकते हैं हाँ ना? हाँ, वही तो बोल रही हूँ। आप लोगों ने, अब पार्ट एक साइड पे फर्म था, आप लोग एक साइड पे फर्म, ये ऐसे नहीं चलना चाहिए। आप उसके साथ कुछ पॉइंट्स से एग्री करो, पार्ट आपके साथ भी एग्री करे, बहुत डिस्कशन अच्छी बनेगी। पर आज की जीडी एक हेल्दी डिस्कशन थी, आज पहली बार आई थिंक आप लोगों को लगा होगा कि एक हेल्दी आर्गुमेंट होनी शुरू हुई है, क्योंकि आप लोग की पार्टिसिपेशन भी थोड़ी इंक्रीज उस तरह से होनी शुरू हुई है, ठीक है। बट सूर्य स्टेडली अभी सभी लोग बोलेंगे, आई थिंक दिशांत चुप है, अभी आपने भी कम पार्टिसिपेशन किया, तो और अच्छी आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस होती है। कंटेंट वाइज वेट होगा आपका आगे से कि फर्स्ट कौन आ रहा है और लास्ट कौन आ रहा है, रोज अपने रैंक देखना शुरू कर देना, ठीक है। चलो, ओके गाइस, ऑल द मैम बेस्ट।